ترکی اور عراق میں دہشت گردی کے خاتمے میں ایک دوسرے کا دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور اشتراک ضروری ہے۔ انہوں نے یہ باتیں ترکی دورے پر آئے خاص طور سے عراقی صدر ابراہیم صالح کی موجودگی میں کہیں۔ واضح ہو کہ ترکی لمبے عرصے سے کہتا رہا ہے کہ عراقی سرزمین سے کردستان ورکرز پارٹی ترکی مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ سنجر میں واقع PKK کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ بھی کرتی رہی ہے۔ عراقی صدر نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان شام تنازع پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے عراق اور ترکی دونوں کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ایران نے بیلسٹک میزائل اور خلائی شٹل کے تجربے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی ہے۔ ایران کا یہ جواب ایک روز قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عالمی سلامتی کے پیش نظر امریکہ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ پومپیو نے ایران کو ان منصوبوں سے دستبردار ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی اور سفارتی طور پر اس سے وہ مزید الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ واضح ہو کہ گزشتہ نومبر میں ایرانی میڈیا نے نائب وزیر دفاع قاسم تقیزادہ کے حوالے سے خبر دی تھی کہ جلد ہی ایران 3 خلائی شٹل کا تجربہ کرنے والا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ ان تجربوں میں وہ بیلسٹک میزائل تکنیک کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایران نے امریکی الزامات کی سخت الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ملکوں کو نصیحت کرنے کے بجائے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ تجربات پرامن مقاصد کے لیے ہیں اور جوہری ہتھیاروں کی ریس میں شامل ہونے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سوڈان میں صدر عمر البشیر اور حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا دور مسلسل جاری ہے۔ حزب اختلاف کی 4 جماعتوں نے مشترکہ طور پر بیان جاری کر کے اتوار کو حکومت مخالف ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ اس دوران مظاہرین پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ گرانی، مہنگائی اور ضروری اشیاء کی کمی کے سبب گزشتہ 2 ہفتوں سے ملک میں حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان مظاہروں میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن صدر عمر البشیر کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تیل اور کیش کی کمی سے شروع ہوا یہ احتجاج دن گزرنے کے ساتھ ہی شدت پکڑتا جا رہا ہے۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے صدر نے سیکورٹی فورسز سے مظاہرین پر سختی نہ کرنے کی ہدایت دی۔ 4.25 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک امریکہ کی اس لسٹ میں شامل ہے جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ایک روز قبل انہوں نے ملک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقتصادی پابندی اور داخلی انتشار پھیلا کر کے کچھ طاقتیں حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حالات کے پیش نظر ملک کے کچھ علاقوں میں ایمرجنسی اور رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسکول کالج بند ہو چکے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جلدی حالات پر قابو پا لیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوئے عمر البشیر کی 30 سالہ دور حکومت میں سوڈان زبردست انتشار کا شکار رہا۔ نسلی تعصب کی بنیاد پر ملک کے 2 حصے ہو گئے۔ ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں نسل کشی کا مقدمہ بھی چل چکا ہے۔ مرحوم صحافی جمال خاشقجی قتل معاملے میں ملزمین کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے پروسیکیوٹر جنرل نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دنوں فوجداری عدالت میں اس معاملے کی پہلی سماعت ہوئی اور اس دوران کورٹ میں 11 ملزمین اپنے اپنے وکیلوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور خبروں کے مطابق استغاثہ نے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں 5 ملزمین کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ استغاثہ نے قتل کے حوالے سے ثبوت طلب کرنے کے لیے ترکی کو 2 درخواست بھی ارسال کی ہے۔ سماعت کے بعد عدالت نے ملزمان کو اپنے جوابات داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انتظامی امور میں شفافیت اور سیاسی بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے نام پر حکومت میں آئے عمران خان اب اسی معاملے کو لے کر حزب اختلاف کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ اربوں روپے کی مالیت کا ایک ٹھیکہ وزیر اعظم کے ایک بے حد قریبی شخص کے بیٹے کی کمپنی کو دیا گیا ہے اور یہ کانٹریکٹ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے میں دریائے سوات پر مجوزہ مہربند باندھ کی تعمیر کا ہے، جسے عمران خان کے تجارت اور صنعت شعبے کے مشیر عبد الرزاق کے بیٹے کی کمپنی ڈیسکون کو دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ ٹھیکے کی نیلامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے من پسند لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ حکومت نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن اپوزیشن اور میڈیا کا ایک حلقہ اسے مفادات کے تصادم کے طور پر دیکھ رہا ہے۔
तो इमरान खान पर भी लगने शुरू हुए, उनकी हुकूमत पर भी लगने शुरू हुए बदعنवानी के इल्ज़ाम, और हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसको लेकर के अब माहौल बनाना शुरू कर दिया है और मीडिया ने भी वहां पर इस तरह के इशारे देने शुरू कर दिए हैं। इंतज़ामी उमूर में शफाफियत और सियासी बदعنवानी को दूर करने, उसका खात्मा करने का दावा करते आए हैं इमरान खान, और इसी के चलते उन्होंने इलेक्शन में जीत भी हासिल की थी। इमरान खान अब इसी मामले को लेकर के हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर आ गए हैं और उनका इल्ज़ाम है हिज़्ब इख्तिलाफ का कि अरबों रुपए की मालियत के ठेके अपने करीबियों को दिए जा रहे हैं और इनमें ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म के एक बेहद करीबी शख्स के बेटे की कंपनी को एक ठेका देने का इल्ज़ाम लगा है। ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दरियाए स्वात पर मुजव्वज़ा मेहमंद बांध की तामीर का है, जिसे इमरान खान के तिजारत और सनत शोबे के मुशीर अब्दुल रज़ाक के बेटे की कंपनी डेस्कॉन को दिया गया है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ठेके की नीलामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई है और मनपसंद लोगों को ये ठेके दिए जा रहे हैं। इधर शुमाल मशरक़ी ममालिक में इस वक्त मौसम ने भारी तबाही मचा कर रखी है। पहले इंडोनेशिया में सुनामी, फिर फिलिपीन में सैलाब और लैंडस्लाइड, और अब जनूबी थाईलैंड तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश के बाद समंदरी तूफान ने यहां पर दस्तक दे दी है। कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं समंदर से, और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान तकरीबन 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। खराब मौसम के सबब कई फ्लाइट मंसूख कर दी गई हैं। समंदर के आसपास की आबादी, रिजॉर्ट और तेल निकालने वाले मुलाजमीन से इलाके को खाली करा लिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में मूसलाधार बारिश और समंदरी लहरों की तस्वीरें अपलोड की गई हैं। महकमा मौसमियात ने फुकेट, समोई और कराबी जजीरे में वार्निंग जारी कर दी है और माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 30 साल बाद जुनूबी साहिल पर इस तरह का तूफान आया है। ट्रेड वार के सबब अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई कशीदगी को कम करने के लिए एक अमेरिकी वफ्द बीजिंग के 2 रोजा दौरे पर आ रहा है। चीनी वजारत कॉमर्स ने बयान जारी करके इसकी इत्तला दी है। बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों के नायब वजीर सतह के अहलकारों के दरमियान इस मसले पर टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है और 7 जनवरी से शुरू हो रहे इस दौरे में अमेरिकी वफ्द की क़यादत डिप्टी यूएस ट्रेड नुमाइंदे जेफरी गैरिश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई बातचीत के पेश नज़र आइंदा के इक़दामात पर गौर खोज किया जाएगा। उधर अमेरिका ने मॉस्को में यूएस बहरिया के साबिक ऑफिसर की गिरफ्तारी पर रूस से वजाहत तलब की है। मॉस्को ने पॉल वेलन नामी शख्स को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने सिफारती सतह पर इस मामले को रूस के सामने उठाते हुए वेलन को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया है। वेनल के खिलाफ रूस की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर रखा है। रूसी कवानीन के मुताबिक जासूसी का इल्जाम साबित होने पर 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। वेनल के घर वालों का कहना है कि एक अजीज की शादी में शरीक होने के लिए वो मॉस्को गया था। तो एक अमेरिकी शहरी पर रूस में जासूसी का इल्जाम लगा, उसे गिरफ्तार किया गया है रूस के जरिए मॉस्को में, और वो अपने एक अजीज की शादी में शामिल होने के लिए गया था। अमेरिका ने रूस से अपने शहरी की तुरंत रिहाई की मांग की है। नैन्सी पेलोसी ने दूसरी दफा ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है। सदर के बाद अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर का ओहदा खासा अहमियत का हामिल माना जाता है और गुज़श्ता निस्फ सदी के दौरान 2 मरतबा ये ओहदा संभालने वाली वो पहली खातून है। उन्होंने ये ओहदा उस वक्त संभाला जबकि हुकूमत मुनकसिम है और सदर ट्रंप की मुखालफत जोरों पर है। पेलोसी के सामने सबसे बड़ा मसला जुज़बी शटडाउन को खत्म करना होगा और डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद ये पहला मौका है जब ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट को अक्सरियत हासिल हुई है। ऐवान में डेमोक्रेट अरकान 6 अखराजाती पैकेज बिल मंजूर करने वाले हैं। इससे शटडाउन खत्म होने का इम्कान है। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी महकमे को फंड देने के लिए अलग से कानून साजी की तजवीज़ पेश हो सकती है, लेकिन सीनेट में इस तजवीज़ की मंजूरी होने के इम्कानात
कम ही है क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन फैसला कुन पोजीशन में है। सैन फ्रांसिस्को की नुमाइंदगी करने वाली प्लूसी ने ओहदे का हलफ लेने के बाद कहा कि आइन की पहली शिक में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सभी की बराबर अहमियत है। वहीं अमेरिकी सदर ने नैन्सी को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनकी सदारत में ऐवान हुकूमत का पूरा साथ देगा। Our nation is at an historic moment. 2 months ago, the American people spoke and demanded a new dawn. They called upon the beauty of our Constitution, our system of checks and balances that protects our democracy, remembering that the legislative branch is Article 1, the first branch of government, co-equal to the presidency and to the judiciary. I just want to start off by congratulating Nancy Pelosi on being elected Speaker of the House. It's a very, very great achievement. And hopefully we're going to work together and we're going to get lots of things done like infrastructure and so much more. I know they want to do that very badly, so do I. So hopefully we're going to have a lot of things that we can get done together. And I think it's actually going to work out. I think it'll be a little bit different than a lot of people are thinking. So I congratulate Nancy. Tremendous, tremendous achievement. आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का मौजूदा ऐवान नुमाइंदगान कई लिहाज से तारीखी भी है। मुल्क के 50 सूबों के 435 कांग्रेसनल अजला के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस वक्त सबसे ज्यादा खवातीन और लैटिन नजाद मेंबरान हैं, जिनकी सदारत अब नैन्सी पेलोसी करेंगी। नैन्सी सुबुकदोश हो रहे रिपब्लिकन पॉल रियान की जगह लेंगी। इसे ऐवान नुमाइंदगान में वाज़ेह अक्सरियत के लिए 218 सीटों की जरूरत होती है। डेमोक्रेट के पास इस वक्त 235 जबकि रिपब्लिकन के पास 199 मेंबरान हैं। 1974 के बाद ये पहला मौका था जब वस्त मुद्दती इंतखाबात में किसी पार्टी को 40 से ज्यादा सीटों पर सबकत हासिल हुई है। 2018 में टर्म पोल में भी 1914 के बाद पहली दफा 50% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उधर गुज़िश्ता इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार रहे मिट रोमनी जूनियर यूएस सीनेटर के तौर पर हलफ उन्होंने लिया। ओहदे और सेक्रेसी का हलफ उन्हें नायब सदर माइक पेंस ने दिलवाया। रोमनी ट्रंप के जबरदस्त मुखालिफ माने जाते हैं और 2 रोज कबल एक मारूफ रोजनामे में शाया अपने एक आर्टिकल में उन्होंने अमेरिकी सदर पर जबरदस्त तनकीद की थी। उन्होंने कहा, यहां तक लिखा कि उनकी जहनी सतह सदारती ओहदे के लिए मौजू नहीं है। ट्रंप ने इसके जवाब में बस इतना कहा कि 2012 में पार्टी ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था, वो फातेह रहे थे। माना जा रहा है कि मिट्स रोमनी और ट्रंप मुखालिफ दूसरे मेंबरान सीनेट में अमेरिकी सदर के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो सीनेट में अमेरिकी सदर के लिए मिट्स रोमनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जी हां, गुज़िश्ता इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार रहे मिट रोमनी जूनियर यूएस सीनेटर के तौर पर उन्होंने हलफ लिया है। ओहदे और सीक्रेसी का हलफ उन्हें नायब सदर माइक पेंस ने दिलवाया। रोमनी ट्रंप के जबरदस्त मुखालिफ माने जाते हैं और 2 रोज कबल एक मारूफ रोजनामे में अपने आर्टिकल में उन्होंने अमेरिकी सदर पर जबरदस्त तनकीद की थी। उन्होंने यहां तक लिखा कि उनकी जहनी सतह सदारती ओहदे के लिए मौजू नहीं है। ट्रंप ने इसके जवाब में बस इतना कहा कि 2012 में पार्टी ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था, वो फातेह रहे थे। माना जाता है कि मिट्स रोमनी और ट्रंप मुखालिफ दूसरे मेंबरान सीनेट में अमेरिकी सदर के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो शूटडाउन के अलावा स्पीकर नैन्सी पेलोसी के लिए मैक्सिको वॉल की तामीर को लेकर इत्तेफाक राय बनाने का भी काम करना होगा। इसी की वजह से शूटडाउन की नौबत आई है और हुकूमत इस मसले को पूरी तरह से दाखिली सलामती के तौर पर देखती है, जबकि अपोजिशन, राइट ग्रुप और सिविल सोसाइटी के लोग इसे इंसानी बुनियाद पर हल करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर बजट मुख्तस करने से इनकार और इसकी मुखालफत के लिए डेमोक्रेट की तनकीद करते रहे। उनका दावा है कि मुल्क की आवाम दीवार तामीर के हक में है और मुल्क की सलामती के लिए दीवार बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पीकर ने सदर के इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि डेमोक्रेट इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं। You can call it a barrier, you can call it whatever you want, but essentially we need protection in our country. We're going to make it good. The people of our country want it. I have never had so much support as I have in the last week over my stance for border security, for border control, and for, frankly, the wall or the barrier. I have never had anything like it in terms of calls coming in terms of people writing in and tweeting and doing whatever they have to do. I've never had this much support, and we've done some things that, as you know, have been very popular.
The president cannot hold public employees hostage because he wants to have a wall that is not effective in terms of its purpose, not cost effective in terms of what opportunity cost it is of federal dollars to spend. And the president has said Mexico's going to pay for this. Come on, let's anchor ourselves into reality. Mexico is not going to pay for this wall. So no, it has nothing to do with politics. It has to do with the wall is an immorality between countries. It's an old way of thinking. It isn't cost effective. डेमोक्रेट अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान ने जुज़वी शटडाउन खत्म करने वाले कानून को मंजूर कर दिया है। पैकेज की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ सरकारी इदारों को 30 सितंबर तक रकम मैसर हो सकेगी। इस तरह मैक्सिको की सरहद पर तामीर होने वाली दीवार की निगरानी के लिए होमलैंड सिक्योरिटी का फंड भी मुख्तस हो गया है। इसकी रकम 8 फरवरी तक फराहम हो सकेगी। इस रकम से कॉमर्स, ज़राती, लेबर, ट्रेजरी और दूसरे इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाह मिल सकेगी और तरक्याती काम भी हो सकेंगे। बाज़ियों की शटडाउन के सबब तकरीबन 8 लाख मुलाजमीन बिला तनख्वाह काम कर रहे हैं। शटडाउन और मैक्सिको वॉल को लेकर दोनों पार्टियों के नुमाइंदगान ने अपने अपने मौक़िफ़ की पुरजोर हिमायत की है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के में खासतौर से तारीख बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए हार के सारे इम्कानात खत्म कर दिए। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने अपनी इनिंग्स 7 विकेट पर 622 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। पहाड़ जैसे स्कोर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सीरीज बराबर करने की सारी उम्मीद खत्म हो गई। पुजारा ने 193 जबकि पंत ने 159 रन बनाए। इन दोनों के अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 81 रनों की इनिंग खेली। सीरीज में 3 सेंचुरी स्कोर करने वाले पुजारा की ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने खूब तारीफ की। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उनके डिफेंस को नहीं तोड़ पाए। Trying to do yesterday afternoon, and to be fair, probably the first hour of the morning and then the first hour after lunch, we got it slightly wrong. So it can sometimes look like that, but we know what we're trying to do. Sometimes you don't quite execute, and teams can get away from you, and that's what happened. Yeah, look, I think it is what it is. It's one of those things we can't really control. We've just got to play better than what we have. So what I do know is that the pitch here and the pitch in Melbourne didn't make us bowl as badly as what probably we have in this test. I think we've just been outplayed. Both teams have had similar conditions. But yeah, from me, who also loves watching Test cricket, I'm sure the guys would like to see in Australia a bit more bounce, a bit more pace, and something that we've probably become accustomed to in Australia. But it is what it is, and we've just got to play better on whatever wicket's served up wherever we are in the world. Yeah, with Pujara in particular, I think if you're not swinging the ball, he's extremely hard to get out. So I think early in his innings, you try and hit his stumps and his pad. But in the form he's in at the moment, he's not missing too many. And when the wicket is like it is and you can't swing the ball, not many good players miss him. And he's been really patient and disciplined around his off stump. So, as I said, he's just grinded our bowlers. नाज़रीन, तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।